aspirants, welcome back to E-Takshila classes. My name is Vasundhara and I am back with another lecture on adjectives. So before we dive into adjectives part 3, we are going to understand the meanings of the words that we had discussed in the previous class. So the words which we had were as follows. The first word was avarice. Now, what do you mean by avarice? Avarice का मतलब होता है greed. हिंदी में जिसे हम कहते हैं लालच, और इसी से वर्ड बनता है avaricious. So if somebody is greedy, he or she is known as avaricious, and avarice in itself means greed. Second word जो था हमारे पास वो था this. Now this is pronounced as abysmal. Okay, and abysmal refers to something that is very bad. Okay, like he had a very abysmal expression on his face when he looked at the sheet of paper, right? So that is abysmal, which is extremely bad. Next we have prudence. Prudence का मतलब होता है wisdom. And if somebody is prudent, he or she is considered to be wise. Alright, so prudence is an abstract noun, whereas prudent is an adjective. It is an adjective of quality that we use to describe or define people. The last word that we had in the previous class was frivolous. This is a frivolous issue. Frivolous का मतलब होता है things that do not need or that should not get any importance. यानी छोटी मोटी बातें, इनको हम trifles भी कह सकते हैं. Things that do not deserve much importance or attention, they are known as frivolous talks या frivolous matters. Okay, so these were the 4 words. I hope you got the meanings cleared and you had made sentences as well. So let us quickly get started with today's class, and we have already completed the types of adjectives, we have completed the degrees of comparison, and today we are going to start with another concept, that is ordering of adjectives. अब adjectives को order कैसे करना है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक noun के पीछे या एक noun के आगे बहुत सारे adjectives given हैं, so we will use this method to order them. राइट तो मान लीजिए अगर जैसे मेरे पास एक है हाउस, दिस इज माई नाउन, राइट. अब मेरे पास कुछ एडजेक्टिव्स हैं जैसे वुडन, बिग, ब्राउन, ओल्ड. सो हाउ एम आई गोइंग टू प्लेस दीज एडजेक्टिव्स हियर? कैन आई से दैट आई लिव इन अ बिग ब्राउन ओल्ड वुडन हाउस? कैन आई से आई लिव इन अ बिग वुडन ओल्ड ब्राउन हाउस? There are multiple ways, there can be multiple ways, right? But no, we have to follow a particular order, which is with the help of this mnemonic or acronym you can say, we'll follow, known as NOSASCOM. Now N here stands for nature. Some people also term it as COSAS because Q से आप इसको quantity भी लिख सकते हैं, right? Next है opinion. S का मतलब है size, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस. क्लियर? अब अगर हम इसी एडजेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं नेचर या क्वांटिटी हमारे पास हाउस की है, नहीं है. फिर ओपिनियन, हमारा ओपिनियन क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, हमें नहीं मालूम. साइज क्या है हाउस का कि वो बिग है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बिग. एज, एज क्या है हाउस की, वो ओल्ड है, एंशियंट है. बिग, ओल्ड. शेप दी हुई है कोई, सिलिंड्रिकल, राउंड, स्क्वायर, नो, सो देयर विल बी नो शेप. कलर, यस वी डू हैव अ कलर, इट इज ब्राउन इन कलर. क्या हमारे पास कोई ओरिजिन है, यानी इंडियन, चाइनीज, कोरियन, स्विस? नो, वी डू नॉट हैव एनी ओरिजिन, सो वी लीव इट ब्लैंक. मटेरियल क्या है उसका, दैट इट इज वुडन. एंड शेप पर्पस हमारे पास क्या रहेगा कि किस लिए ये नाउन जो है वो यूज किया जाता है. तो अगर हम देखें तो हम किस ऑर्डर में इस सेंटेंस को बोलेंगे, आई हैव अ बिग ओल्ड ब्राउन वुडन
क्लियर? तो इस तरीके से हम एडजेक्टिव्स को जो है एक सीक्वेंस में ऑर्डर करते हैं. जैसे I have 2 long narrow plastic brushes. I liked a Jamaican beautiful sunrise. They had 18 soda large bottles. अब हम इसको लगाते हैं सीक्वेंस में. ठीक है, सबसे पहले देखिए हमारे पास कोई नेचर है इसका, कोई क्वालिटी. We have opinion, then we have size. सबसे पहले साइज देखते हैं हमारे पास क्या है, लॉन्ग. Then we have age, नहीं है हमारे पास. Shape, no. Color, no. Oh sorry. Origin, we have no origin. Material is plastic. And purpose. अब हमारा टू किस में आता है ना, इसमें क्वांटिटी में, तो इसको हम सबसे पहले कर देंगे. ठीक है, आई हैव 2 लॉन्ग नैरो प्लास्टिक ब्रशेस. सिमिलरली इसको और इसको भी हम इसी तरीके से फ्रेम कर देंगे, इसी तरीके से ऑर्डर में डाल देंगे. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द रूल्स. अब हमने सारे टाइप्स, डिग्रीज, सब कुछ कंप्लीट कर लिया. अब हमारे पास रह गए हैं रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स करने. तो हरी अप, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू बिगिन विद द रूल्स. नाउ द फर्स्ट रूल सेज दैट than is used with comparative degree of adjective. जिन्होंने कल डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें ये पता होगा कि than जो है वो एडजेक्टिव के हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ लगता है. जैसे आइस फील्स कोल्डर देन स्नो. ठीक है, ये ज्यादा कोल्ड है, ये कंपैरिजन में ज्यादा है, ER लगा है, तो क्या आएगा, than. मूविंग ऑन, शी इज मोर ब्यूटिफुल देन हर सिस्टर. नाउ वी आर कंपेयरिंग अगेन 2 people, शी एंड हर सिस्टर. तो किसका ज्यादा, हमें पता है कि ज्यादा लेवल किसके पास है, शी के पास. तो हम क्या लगाएंगे, क्या हम ब्यूटीफुलर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते. हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास में कि ब्यूटीफुल जो है उसके साथ ER नहीं लगता, हम उसके साथ क्या लगाते हैं, मोर. सो इसीलिए शी इज मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर. राइट, तो ये है हमारा रूल नंबर 1, दैट than के साथ वी ऑलवेज यूज कंपैरेटिव डिग्री. All right. Next rule says that when 2 subjects are compared and one is selected or chosen, then the following structure is used. अब सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या कहता है. स्ट्रक्चर कहता है कि सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, बी की कोई फॉर्म. प्रोनाउंस के लेक्चर में एक चीज जो मैंने आपको कराई थी वो ये थी कि बी की फॉर्म्स होती हैं आगे इज, एम, आर, वॉज, वर. क्लियर? आगे आएगा हमारे पास द, फिर आएगी कंपैरेटिव डिग्री और फिर आएंगे प्लूरल नाउन्स. ये मैंने आपको एक्सेप्शन में भी कराया था कि ऐसी कौन सी एक्सेप्शन है पिछले ही लेक्चर में जहां पे हम लोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ द यूज करते हैं. एक है आपकी पैरेलल कंपैरिजन और एक क्या है जब 2 सब्जेक्ट्स को हम कंपेयर कर रहे हैं और एक को हमें सिलेक्ट करना है. जैसे श्रेया इज द टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर्स. अब मान लो मैं एक थर्ड पर्सन हूँ, मेरे आगे 2 आइटम्स पड़ी हैं, 2 चीजें पड़ी हैं. आई हैव टू पिक एंड चूज वन, राइट, एंड आई हैव टू मेंशन दैट दिस इज बेटर देन दैट. तो मैं क्या बोलूंगी, लाइक ऑफ द 2 प्लेयर्स, मेरे आगे जो 2 प्लेयर्स हैं, महेश जो है वो बेटर है, तो मैं क्या बोलूंगी, महेश वॉज द बेटर वन. अब क्या डिफरेंस है, सबसे पहले तो हम बेटर इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 लोगों में कंपैरिजन है. ठीक है, लेकिन हम द क्यों यूज कर रहे हैं, द इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हम एक को डिफाइन कर रहे हैं और द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, तो इसीलिए हम यहाँ द लगाएंगे. श्रेया इज द टॉलर ऑफ द 2 सिस्टर्स. 2 के कंपैरिजन में श्रेया ज्यादा टॉल है, तो हम क्या बोलेंगे, द टॉलर, because we are defining that which one, who is the taller one, Shreya, right? So this is our rule number 2. Now if 2 adjectives are joined by a conjunction, then both the adjectives should be in the same degree. For example, Anita is cleverer and braver than her sister. अगर normally मुझे ये बात बोलनी हो कि कोई जो है इंसान क्लेवर एंड ब्रेव है, फॉर एग्जाम्पल अनीता इज क्लेवर एंड ब्रेव, तो मैं उसको यही बोलूंगी क्लेवर है, ब्रेव है, दोनों की सेम डिग्री है. कौन सी डिग्री है ये, पॉजिटिव.
अगर मुझे कहना है कि अनीता अपनी सिस्टर से ज्यादा क्लेवर और ब्रेव है, तो क्या मैं ये बोलूंगी अनीता इज क्लेवर एंड ब्रेवर, क्लेवरर एंड ब्रेव? नो, दोनों डिग्रीज का जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है दोनों एडजेक्टिव का, वो सेम टू सेम होना चाहिए। अगर हम दो लोगों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट वी नो कि हमें हमेशा कंपैरेटिव डिग्री लगानी पड़ती है। तो अगर यहाँ क्लेवरर है तो यहाँ भी क्या आएगा? ब्रेवर, राइट? तो इससे ये कौन सा रूल वैलिड हो जाता है कि इफ टू एडजेक्टिव्स आर जॉइंड बाय अ कंजंक्शन then both the adjectives should be in the same degree, like you have seen in this example, right? For example, if I have to say Rahul is smarter and wiser than Shyam, भाई दो लोगों का कंपैरिजन है, दोनों क्वालिटीज इसके पास है, तो दोनों में क्या लगेगा? ER, करेक्ट? चलिए मूविंग ऑन। If both ordinal and numeral adjective, ordinal और numeral adjective पता होना चाहिए, टाइप्स में हम कवर कर चुके हैं, are used in a sentence, then always ordinal adjective will be used first and numerical will be used later. ठीक है? चलिए, अब अगर हमारे पास ordinal नंबर यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे दिया है, तो हम पहले किसको लगाएंगे? पहले हम लगाएंगे ऑर्डिनल को और फिर नंबर को। जैसे यू मस्ट स्टडी द 3 फर्स्ट टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस, ये बेसिक नंबर है, कार्डिनल है, ये ऑर्डिनल है, पहले कौन लगेगा? फर्स्ट 3 टॉपिक्स। द लास्ट 2 और 3 चैप्टर्स ऑफ द बुक आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहले क्या लगेगा? ऑर्डिनल, फिर लगेगा, ठीक है? ये इसमें एरर आपको समझ आ गया? इसमें कोई एरर नहीं है, ये एकदम ठीक है, राइट? तो ऑर्डिनल फर्स्ट एंड देन द कार्डिनल। फर्स्ट यू विल यूज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले नंबर्स, उसके बाद आप बेसिक नंबर्स या कार्डिनल नंबर्स को करेंगे। नेक्स्ट, टू इज यूज्ड ऑफ इंस्टेड ऑफ देन आफ्टर सर्टेन एडजेक्टिव्स, ठीक है? अब देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो IOR या OR पे खत्म होते हैं, ठीक है? आपके सामने कुछ मैं आपको एडजेक्टिव्स दिखाती हूँ, जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर, एल्डर, यंगर, प्रेफर, प्रेफरेबल। अगर ये आपको सेंटेंसेस या वर्ड्स कहीं भी दिखते हैं तो आप इनके साथ कभी भी देन नहीं लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक दिस कॉमन मिस्टेक ऑफ यूजिंग देन विद प्रेफर। आई प्रेफर दिस देन दैट, आई प्रेफर दिस ओवर दैट। दिस इज अ ह्यूज मिस्टेक। यू ऑलवेज प्रेफर something to the other thing. You prefer this to that. So Manvi is superior than Anshu? No, she is superior to. Yogesh is junior than me? No, Yogesh is junior to me. Okay? I prefer tea dash coffee over coffee than coffee? No, you always use to. I prefer tea to coffee. Clear? चलिए, okay, to is used of than with adjective preferable and more also cannot be used with it. Preferable word का मतलब ये होता है कि हम किसी और चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों में। तो प्रेफरेबल, जैसे प्रेफर के साथ टू लगता है, प्रेफरेबल के साथ भी टू लगता है, और मोर लगाने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एडजेक्टिव में कभी भी डबल कंपैरेटिव्स जो है वो यूज नहीं करते। हम कभी भी नहीं बोलेंगे शी इज मोर प्रिटियर, शी इज प्रिटियर। मोर ऑलरेडी एक कंपैरेटिव डिग्री है किसकी? मच की। लेक्चर 1 या 2 में हमने ये कवर किया था। डन। एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स हैं कुछ जिनके साथ आप मोस्ट नहीं लगाते, जैसे दिस इज द मोस्ट सुप्रीम पावर। सुप्रीम का मतलब ही होता है सबसे ज्यादा, तो यहाँ मोस्ट लगाना इज रॉन्ग। शी इज द मोस्ट यूनिक सिंगर, शी इज द मोस्ट यूनिक स्टूडेंट, गलत है। यूनिक का मतलब ही अपने में होता है सबसे बेहतरीन, सबसे बेस्ट। तो मोस्ट यूनिक जो है it is wrong grammatically. Why? Unique in itself means one of a kind or the best of its kind, right? So these are certain words, you can make a list of them. For example, absolute, eternal, chief, circular, round. इनके साथ these are absolute,
सुपरलेटिव्स, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स बोलते हैं हम इनको, इनके साथ मोस्ट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट से इसको कॉपी कर लीजिए। यूनिवर्सल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सट्रीम, टोटल, होल, राइट, रॉन्ग, डन। Now, fairly and comparatively cannot be used before comparative degree. हम कभी बोलते हैं the bag is fairly heavier, he is comparatively weaker. No, comparatively का मतलब ही comparison है, weaker का मतलब ही comparative degree है, दोनों को इकट्ठे नहीं लगाना है, डबल कंपैरेटिव साथ में यूज नहीं करने हैं, तो आंसर विल बी द बैग इज heavier. No fairly, she was comparatively better, she was comparatively good, or she was just better. Either use the positive degree or just use one comparative degree without any other word like fairly or comparatively. Right? This is how the rule should be followed. Next, if comparing two or more in affirmative, you are as serious as me. You and me are equally serious. इस सेंटेंस का मतलब क्या है? You are as serious as me का कि तुम और मैं एक लेवल पे सीरियस है. This means equal. अगर मुझे उसे चेंज करना हो तो मैं बोलूंगी you are not as serious as me. No, I will say you are not so serious as me. अगर मुझे उसे नेगेटिव बनाना हो या मुझे कहना हो कि भाई तुम मेरे जितने सीरियस नहीं हो, तो मैं as serious as की जगह क्या लगाऊंगी? So serious as. You are not so serious as me. Okay, so positive degree में हम वैसे हमेशा as dash as लगाते हैं. There is one case where we use so dash as, that is in the case of a negative sentence. All right. चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ यूज ऑफ few, little, much and many. सबसे पहले हम बहुत बारी हम पढ़ते हैं much कहाँ लगाए, many कहाँ लगाए. ठीक है, much आपको पता होना चाहिए is used with uncountable nouns. जैसे हम बोलते हैं I have, there is not much sugar in the pot, there is not much milk in the jug. Right? many हम कहाँ लगाते हैं? countable के साथ. Okay, जैसे I have many friends, I have many books. ये तो इजी है. बात आती है सारी few और little की, और few और little दोनों के तीन तीन और पार्ट्स होते हैं, जैसे a few, the few. ठीक है, a little, the little. अब सबसे पहले बात करते हैं हम few. few तीन टाइप का है, few, a few, the few. ठीक है जी. few हम यूज करेंगे काउंटेबल चीजों के लिए, लिटिल यूज करेंगे अनकाउंटेबल चीजों के लिए. तो few का मतलब क्या है? जैसे if I say I have few friends, मतलब almost nil, negligible, ना के बराबर. A few का मतलब होता है थोड़ा सा ऊपर, more than few. लास्ट आता है the few. The few का मतलब particular quantity. जैसे अगर मैं आपको बोलूं the few books I had are not for sale. अब क्या मैं यहाँ few बोलूंगी, a few बोलूंगी या the few? The few books, वो जो थोड़ी सी बुक्स मेरे पास थी. Similarly, little means बहुत थोड़ा, a little means थोड़ा सा ज्यादा, and the little का मतलब होता है वो जो थोड़ा सा था. जैसे the little water I had was drunk by her. जो थोड़ा सा पानी था मेरे पास, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ? the little. अनकाउंटेबल है वाटर, few नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे? the little. Is it clear? Okay, so we have certain questions. For example, this box is heavy than the other one. Is there any error in the sentence? The box is heavier. क्योंकि दो चीजों में कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? heavier than the other one. Right? It was very simple, and it was this question has come in one of the previous year papers.
So please be mindful of whatever we are doing. He doesn't know that Mount Everest is the most highest peak. क्या गलती है इस क्वेश्चन में? मोस्ट हाईएस्ट, हमें पता है डबल कंपैरेटिव्स नहीं लगाने, तो हम क्या बोलेंगे सिर्फ माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक. डन. The most sweetest songs are those that attenuate or are restlessness when they are listened to. Attenuate का मतलब क्या होता है? देखिए एक और वर्ड आपको मिलेगा. Attenuate means to weaken or to reduce something. ठीक है. सेंटेंस कहता है कि सबसे अच्छे गाने, सबसे मीठे गाने वही हैं जो हमारी रेस्टलेसनेस या बेचैनी को कम करें उनको सुनने के बाद. क्लियर? तो मोस्ट स्वीटेस्ट, अगेन वी नेवर यूज डबल कंपैरेटिव्स टुगेदर. यहाँ पे मोस्ट जो है वो अननेसेसरी है. क्लियर? मूविंग ऑन. There are very fewer hotels providing facilities for the guests who want to bring their pets along with them. There are very fewer hotels. There are very few hotels. बहुत कम, negligible. The car flew off the road and fell into the valley because Amit was driving faster. Because Amit was driving faster than whom? कोई comparison नहीं हो रहा है. Positive degree. Amit was driving fast. कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा उस कार का या किसी की ड्राइविंग का, तो ये हमेशा पॉजिटिव डिग्री में रहेगा. एंड देयरफॉर द एरर इज हियर. यू विल नॉट यूज फास्टर, यू विल यूज फास्ट. क्लियर? मिस्टर अडवाणी रीच द पार्लियामेंट प्रायर देन द स्पीकर. Words that end with IOR will always use to rather than than. So हम यहाँ क्या बोलेंगे? Prior to. ठीक है? If you were able to spot this error, good job. Mr. Advani reached the parliament prior to the speaker. उनसे पहले. Clear? चलिए. इसके साथ we have come to the end of this lecture, and with this we have almost completed. What almost? We have finished adjectives. And good job everybody for joining in. With that we'll discuss the vocab valley for today. You have 4 words. They are proscribe, anomaly, spurious and obliterate. Kindly find down the meanings of these words, and in the next class we'll be discussing them. So thank you so much for joining in, and I'll see you with another lecture, and we'll be starting verbs. So whoever is interested in learning verbs, please join, and thank you so much.